नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां संसद में साल 2025-26 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है बजट। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है। 12 लाख की कमाई तक कोई भी टैक्स अब नहीं होगा। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में अब छूट का ऐलान किया गया है। टैक्स रिफॉर्म में मिडिल क्लास पर फोकस किया गया है। किराए की सालाना टीडीएस लिमिट बढ़ाकर 6 लाख की गई है और टैक्स रिटर्न फाइलिंग लिमिट बढ़ाकर 4 साल अब कर दी गई है। बजट में गरीब, किसान, युवाओं पर भी फोकस देखने को मिला। बजट में पावर सेक्टर और माइनिंग पर फोकस देखने को मिला है। कृषि योजना में 100 जिलों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य से मिलकर कृषि क्षेत्र में विकास होगा और मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 ईयर मिशन होंगे और साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए अतिरिक्त सहायता होगी। जनधन कृषि योजना पर काम कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार होंगे। एमएसएमई को समर्थन से रोजगार बढ़ेगा। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। किसानों को खेती का उचित मुआवजा देंगे और किसानों की इनकम बढ़ाई जाएगी। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा और बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा को बढ़ाया गया है। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। तो कुछ इस तरीके से ये कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से ऐलान किए, आप देखिए। Second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep islands. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. Access to credit. The credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, this program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Global and best
domestic best practices will be incorporated and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना किस तरीके से तमाम ऐलान वित्त मंत्री के द्वारा किए गए और इसी विषय पर यानी कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है वित्त वर्ष 2025-26 का, उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। खास उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं और हमारे साथ सीए सागर सिंगला जी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत में सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से ही करना चाहूंगा। विधु साहब, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा कि किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं। लंबे समय से इंतजार जो है बजट को लेकर किया जा रहा था और लंबे समय से इस बात का इंतजार भी किया जा रहा था कि मध्यम वर्गीय परिवारों की ओर सरकार की निगाहें जाएंगी। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। बहुत शानदार बजट है जी। आज तक के बजटीय इतिहास का सबसे बड़ा जो ऐलान है वो इस बजट में हमने देखने को हमें मिला। हमारे आलोचक भी जो थे सुबह से हमें कह रहे थे कि 8 लाख हो जाएगी क्या नॉन टैक्सेबल इनकम टैक्स जो है कितने तक पहुंचाएंगे, 8 तक पहुंचाएंगे, 9 तक पहुंचाएंगे। बोली लगाते हुए हिम्मत कर 10 भी भूल गए। लेकिन जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने खड़े होकर ये कहा कि 12 लाख रुपए प्रति सालाना, यानी कि प्रत्येक महीने में 1 लाख तक की भी जिसकी इनकम है उससे भी सरकार कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लेना चाहती, अलग से कोई आय का कोई किसी प्रकार का कर नहीं लेना चाहती। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऐलान है जिसने मुझे लगता है कि आज विपक्षियों को छुट्टी पर भेज दिया। आपसे पहले एक और शो में था, वहीं से बैगेज लेकर आ रहा हूं, तो वहां पर जो हमारे विपक्षी थे बौखला गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था ये 5%, 4%, 10% ओल्ड टैक्स स्लैब को उठाकर कह रहे थे, कभी 4 से 8 में 5% बता रहे थे। न्यू टैक्स रिजीम में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम में, चाहे इनकम सैलरीड हो, चाहे किसी प्रकार से कोई इनकम हो, चाहे छोटे व्यवसायी की हो, मध्यम व्यवसायी की जो है, 1 लाख रुपए तक की इनकम एक महीने में, उसको कोई टैक्स नहीं देना। हिंदुस्तान की सरकार अपने नागरिकों को कह रही है कि आप 1 लाख तक अगर महीना कमा रहे हैं तो सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेना चाहती। ये मुझे लगता है भारत का बजट है, भारतीयों में विश्वास जताता बजट है। और मैं ये जब कहता हूं कि भारतीयों में विश्वास जताता बजट है, क्यों कहता हूं? क्योंकि पहली बार ऐसा लगा है पूरी दुनिया के अंदर कि किसी एक देश ने अपने नागरिकों पर भरोसा किया है कि वो जब उनके पास जेब में पैसे होंगे तो उस पैसे को वो खर्च करेंगे, खर्च कर मार्केट में आएगा पैसा, और मार्केट में आया हुआ पैसा फिर घूमकर जो है अलग अलग माध्यमों से जो है इस नागरिकों की सुविधाओं के लिए, उनके कामों के लिए जो है लग सकता है। लगातार वर्षों तक जब से मोदी सरकार आई है, हमेशा हमारा फोकस कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ढांचागत विकास रहा है। इतने वर्षों तक इतना जोरदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद, एक बड़ी रोबस्ट इकोनॉमी खड़े करने के बाद, जो कि आज ध्यान करने की बात है जी, देखिए
ये केवल 12 लाख रुपए की छूट नहीं दी गई, ये किस बैकड्रॉप में दी गई अभिषेक जी, ये ध्यान करने वाली बात है, समझने की बात है। आज पूरी दुनिया रिसेशन की चपेट में है। यूरोप 1% की विकास दर से जो है आज बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जापान 1% की, यूएस जो है 2.3% की, चीन जो हमसे दुगनी, कांग्रेस के जमाने में हमारे से दुगनी ग्रोथ रेट रखता था, वो आज हमसे आधी ग्रोथ रेट पर आकर खड़ा हुआ है। हमारे लिए जो प्रिडिक्शन है लगातार जो है वर्ल्ड बैंक उसको रिवाइज करते हो, अपर रिवाइज कर रहा है, तब भी मैं पूरा कर रहा हूं अपनी बात को। उस समय अगर कोई सरकार होगी, आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट बताएगा, बोलेगा जी सारी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 8% की बजाय 6.5% तक प्रिडिक्ट की गई है, तो इसमें तो अब कट्स लगेंगे, इसमें कुछ लाभ देने वाली है। और एक और बात ध्यान करने की, जिसको कह के खत्म कर रहा हूं अपनी बात, कि पिछला साल चुनावी साल रहा है। हम चुनाव में जब जा रहे थे, जब अंतरिम बजट पेश हो रहा था, तो जब सुबह एक्सपर्ट बैठे थे, कह रहे थे कि चुनावी बजट होगा, विपक्षी कह रहे थे, और मोदी सरकार ने वो करके दिखाया। कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया, इतनी महत्वाकांक्षा 400 सीटें आएंगी, पूरी करने दीजिए बात, पूरी बात करने दीजिए, सेंटेंस पूरा करने दीजिए प्लीज। जब पिछली सरकार चुनाव, जिसको ये कांग्रेस में जो गंदे तरीके से राजनीति होती थी कि चुनाव में बजट का उपयोग किया जाता था, वो ना करके चुनाव में जीत कर आए, कांग्रेस को पीट कर आए, और उसके बाद जनता को इनाम दिया, जनता को दिखाया। दोबारा करूंगा मैं आपका, ये वाली बात अभी भी हो रही है भारत की तरफ। विधु जी, ये वाली बात अभी भी हो रही है, मैं रुख आपका दोबारा करूंगा और वेद प्रकाश जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। वेद प्रकाश जी, अगर बात कांग्रेस नेताओं को लेकर की जाए तो यहां पर विरोध अभी भी बजट का देखने को मिल रहा है। जहां से पहले 10 लाख तक की मांग की जा रही थी, मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया। किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर तमाम ऐलान किए गए हैं। किस तरीके से आपका रिएक्शन बजट को लेकर? पहला देखिए, जहां तक आप टैक्स रिलैक्सेशन की बात करेंगे, मिडिल क्लास को निश्चित रूप से फायदा हुआ है, और उसको भी अगर आप गहराई से अध्ययन करोगे तो ये फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा सरकार ने दिया है। पर ये निश्चित है, इसका फायदा निश्चित रूप से मध्यम क्लास को होगा। पर ये कहना कि भाई सभी की 12 लाख होगी, जहां तक मैं समझ पाया हूं, और सीए साहब बैठे हैं, ये और समझा देंगे, सभी की नहीं, सैलरी क्लास की 12 लाख तक की है। फिर आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। विधु जी ठीक है, मैं पहले सत्ता पक्ष का रिएक्शन लेने के बाद सागर जी के पास जाऊंगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है विधु जी, ठीक है, आप रिवर्ट कर रहा हूं। मैंने किसी प्रकार की इनकम हो 1 लाख, विधु जी इंटरप्ट मत करिए। एक छोटा दुकानदार भी अगर कमा रहा है गांव के अंदर बैठकर, उस पर भी कोई इनकम नहीं, कहीं पर नहीं लिखा। विधु जी ठीक है, इस पर एक जगह सागर जी से ले लूंगा अभी। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है वेद प्रकाश जी, बात कंप्लीट करिए। नहीं, वो पूछ रहे थे तो मैंने उनकी मदद कर दी थोड़ी सी। मैंने आज वैसे भी सदमे हुई है। मैंने भाजपा नेता से नहीं पूछा, मैंने कहा था कि सीए साहब, भाजपा नेता भी तो सिटीजन ही है सर। बात रखिए अपनी पूरी। विधु जी प्लीज आप टोकिए, मुझे पता है सदमे में है आज, कोई बात नहीं। चर्चा को मैं संचालित मैं सदमे में नहीं हूं। विधु जी, मैंने तय कर रखा है, नम्रता से मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि इस चर्चा को संचालित मैं कर रहा हूं, आप नहीं। तो प्लीज जब आपकी बारी आए तब अपनी बात कंप्लीट करिएगा। और मैंने पहले टाइम दे दिया था, इसलिए केवल मौजूद हूं। अगर ये बजट की बहस नहीं होती और आप डिबेट में होते तो मैं उस डिबेट में शामिल ही नहीं होता। चलिए ठीक है, वेद प्रकाश जी मुद्दे पर आते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, और ये मैंने इंडिया न्यूज को भी बता रखा था। ठीक। पर दुर्भाग्य है कि इन्होंने मुझे बताया नहीं, और बजट का है, केवल मैं इसलिए बैठा हूं। ठीक है वेद प्रकाश जी, बात बजट पर करते हैं ना, ये मैंने कह रखा है पहले, और मैं कभी आपके साथ किसी डिबेट में भाग नहीं लूंगा, ये मैंने तय कर रखा है। अगर आप बोलेंगे वेद प्रकाश जी, बैक टू द पॉइंट पर आते हैं। टाइम ना वेस्ट कीजिए, टाइम ना वेस्ट कीजिए यार। देखिए टाइम मत वेस्ट कीजिए, प्लीज टाइम मत वेस्ट कीजिए। विधु जी आप प्लीज, विधु जी प्लीज, विधु जी आप ये पूरा समय इसी में निकाल देंगे। बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। विधु जी देखिए, मैंने पहले भी इस बात को क्लियर किया कि चर्चा को संचालित मैं कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि चलिए करिए ना संचालित, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने भी आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी पूरी बात कंप्लीट की, इसके बाद में आगे बढ़ा। ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है वेद प्रकाश जी, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए, बजट को लेकर पॉइंट पर बात करते हैं, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, 2 मेहमान और हमारे साथ। बोल रहा हूं, जब कोई बोलने देगा तो बोलूंगा, बात कंप्लीट करिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जहां तक मैं समझ पाया हूं जी, मेरी समझ गलत हो सकती है, और मैंने कहा सीए साहब बताएंगे। गलत ही है। फिर साहब ये क्या तरीका है जी? मैंने कहा सीए साहब बताएंगे। मेरे अनुसार जो मैंने समझा है
कि 4 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी व्यापारी की जी, वो जी। टैक्स फ्री होगी और जी। सैलरी वालों की 12 लाख की होगी, जी। जैसा मैं समझ पाया। जी पर फिर भी जो मिडिल क्लास को दिया है उसका स्वागत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। परंतु ये बजट विशुद्ध रूप से दिल्ली और बिहार के चुनावों के लिए किया गया है। जी। इस बजट में किसान को कुछ नहीं मिला, इस बजट में मजदूरों को कुछ नहीं मिला, केवल वादे किए गए हैं। जी। हाँ, मिडिल क्लास को भी जो कुछ वो बचाएगा जीएसटी में दे देगा, इसमें टैक्स, इसमें पेट्रोल डीजल में दे देगा। तो जो अपेक्षा थी कि ठीक है। इस बजट से महंगाई कम होगी, जी। वो नजर नहीं चलिए आती। ठीक है, ठीक दूसरा है, जो मैं इस अभी आता हूं। बजट ठीक से है, हम ठीक है, अपेक्षा वेद कर प्रकाश रहे जी, ठीक थे है। कि हमारे साथ नए- सागर जी और केसी मलकानिया जी भी जुड़े हैं, उनका रुख करूंगा मैं, उनका रिएक्शन लूंगा। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, उन्होंने मोहनलाल बड़ौली, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बातचीत किया। उनका क्या कुछ कहना बजट को लेकर, सुनिए आप। केंद्र सरकार के इस बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ है हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी। सर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करा, उनका 8वां था और तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट। किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को? ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट और सीतारमण जी द्वारा 8वां बजट जो पेश हुआ है, और ये विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट होगा। और जो अनेक रियायतें देने का काम किया है, 12 लाख तक की जो छूट मिली है, और किसानों के लिए भी 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की किसान क्रेडिट योजना में जो बढ़ाने का काम किया है, और प्रत्येक राज्य सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए लोन केंद्र की तरफ से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के इस बजट में हैं, और ये देश के विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट रहेगा। लगता है एक बड़ा अंतराल जो है 12 लाख तक की छूट दी गई है, पहले कभी 3 लाख 6 लाख 7 लाख तक करा, और सीधा एक बड़ा ये मध्यम वर्गीय और खासकर नौकरी पेशा वालों के लिए ज़्यादा रहा। ये सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ एक भारत जो दुनिया का ताकतवर देश और पूरी दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो भारत कर सकता है, इस बात का भी संदेश इस बजट के माध्यम से। हरियाणा की दृष्टि से भी बात करें तो पूरे देश का है, 2047 की बात की जाती है, किसानों की बात हरियाणा के साथ आती है, तमाम वर्ग क्या कहेंगे हरियाणा को लेकर? ये हरियाणा जो है हरी की भूमि है और किसानों का प्रदेश है, ये बात ठीक है। और किसानों के लिए जो हरियाणा सरकार ने किया है, हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार ने दी है। और इस बजट में भी किसानों का विशेष ध्यान जो रखा गया है, ये किसानों को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को, प्रत्येक वर्ग को समर्पित ये बजट है, और ये सबके लाभकारी बजट। एक अंतिम प्रश्न दिल्ली चुनाव को लेकर के है। अभी हम कुछ कांग्रेस नेताओं से बात करें तो उनका कहना है कि ये चुनावी बजट दिखाया गया है, दिल्ली चुनाव है, 3 तारीख को प्रचार थम रहा है, इसलिए तमाम चीज़ें रही हैं, लेकिन ये आंकड़ों का गेम है। ये जो कांग्रेस के लोग हो या केजरीवाल की पार्टी के लोग हो, वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, और उनकी झूठ हर कदम कदम पर पकड़ी भी जाती है। और अब की बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है, बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली का वोटर करने वाला है, और 5 तारीख को जो वोटिंग होगी तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का, कमल के फूल को पूरा आशीर्वाद दिल्ली की जनता का रहेगा। धन्यवाद। तो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, जिनका कहना है कि तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया, 12 लाख तक सैलरी में छूट, किसानों के मुद्दे रहे। उनका कहना है कि जो विकसित भारत की बात थी, किसानों का जो मुद्दा था, उसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ये बजट पेश किया गया है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, केसी मलकानिया जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलकानिया साहब, जिस तरीके से बजट को लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो चुनाव इस वक्त नजदीक है, अगर बात दिल्ली के चुनाव को लेकर की जाए, 5 तारीख को उसके लिए मतदान होना है, दूसरी ओर बिहार के चुनाव को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो बिहार को लेकर भी कई ऐलान किए गए थे। अगर मखाना व्यापारियों को लेकर बात की जाए, मखाना किसानों को लेकर बात की जाए, उनके लिए भी ऐलान किया गया। तो ऐसे में क्या दिल्ली और बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट का ऐलान किया गया है? अगर बजट में ध्यान रखना होता चुनावों का तो 20 और 24 के चुनावों में रखा जा सकता। उस चुनावों से पहले जो बजट आना था उसमें कहा जा सकता था कि ये जो है बजट उसको ध्यान में रखकर किया गया। तो इसका थोड़ा बहुत असर तो दिल्ली के चुनावों पर भी पड़ सकता है, और आगे आने वाले बिहार के चुनाव है उसमें भी आ सकता है, क्योंकि ITI का विस्तार की बात बिहार की गई है। इसके साथ साथ बजट में मिडिल वर्ग का जो है उसका काफी ध्यान रखा है।
जो इनकम टैक्स की रेशो है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इससे जो मिडिल क्लास है उसको काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ ये बात की जा रही थी कि जैसे जैसे फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही, लोगों को इतनी सुविधाएं दी जा रही, तो उससे लगता था कि टैक्स में